Hello everyone, I hope you all are doing great. So in today's lecture we're going to discuss about what is Abel's formula. उससे पहले Abel's formula को start करने से पहले we need to know what is Wronskian. For that I have given the link in the description box, just a kind of a 5-minute video. You can even check it out. It's very easy. So then you can know what is Wronskian, and then we'll discuss about what is Abel's formula. So let's begin the lecture. We've started what is Abel's formula. So this is the Abel's formula. ये Abel's formula का formula है. We have to learn this and apply into our questions. Okay. So what is W? This W would be Wronskian. Okay. And this A is our constant. And this is, you all know about exponential. This is our E exponential. And now what is this A1 and A0? Let's take an example of a second order linear differential equation. So we've taken this as our example. So y double dash minus 2x y dash plus sine e to the power 2x square of y. ठीक है. So ये जो constant होगा, this constant 1, this is our A0, and this whole with the minus. Okay, this minus 2 is our A1. I hope you got it. ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कभी भी एबल्स फार्मूला निकालना होगा तो आपको ये सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या थर्ड ऑर्डर कुछ ना कुछ हमेशा गिवन होगा टू सॉल्व एंड फाइंड व्हाट इज़ द एबल्स फार्मूला. देन ओनली यू कैन फाइंड व्हाट इज़ एबल्स फार्मूला. अगर ये गिवन नहीं है मीन्स आप कंसेप्ट गलत लगा रहे हो एंड एबल्स फार्मूला इज़ नॉट आस्किंग इन द क्वेश्चन. तो आपको अपना अप्रोच चेंज करना पड़ेगा. तो एबल्स फार्मूला के लिए हमेशा आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा. सो दिस इज़ A1 is minus 2 and A0 is 1 into dx, and then we should have to integrate it and the formula and the answer would given to be like a e to the power something, जो भी आपकी equation में depend करेगा. I hope you got it. Let's jump into the question now. So for the question, what they were trying to say is, let y1 and y2 form a fundamental set of solution. Now जिन्होंने रॉन्स्कियन वाली वीडियो नहीं देखी है, दे नॉट नाउ गोना मिस दिस. लाइक y1 एंड y2 आर द सेट ऑफ सॉल्यूशंस. सेट ऑफ सॉल्यूशंस हमने क्लियरली डिस्कस किया हुआ है. अगर ऐसे y1 और y2 दो सॉल्यूशंस होते हैं, लाइक पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था वेयर y1 इज साइन ऑफ x एंड y2 इज cos of x. This what we have discussed. Then we have find Wronskian of x. We would have clearly find it out. Now ये आपको पता चल गया कि Wronskian, अगर हमारे पास दो सोल्यूशन गिवन होते हैं देन वी हैव टू फाइंड Wronskian. ओके, तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है. यहाँ पर दो सोल्यूशंस हमें गिवन है, सेट ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1. इंटरवल है क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1. यहाँ पर विद गिवन है y1 विद रिस्पेक्ट टू 0 एट 0 is 0 and y1 का derivative at 0 is 1 and y2 at 0 is 1 and y2 का derivative is at 0 is again 1. Then Wronskian of y1 and y2 at x is equals to 1 is, अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, Wronskian at x is equals to 1. We have to find Wronskian at x is equals to 1. So for that y1 and y2 are the solutions. हमें पता है इसमें Wronskian सबसे पहले हमें निकालना है क्योंकि यहाँ पर गिवन भी है y1. यहाँ पर हमें इनकी वैल्यूज़ गिवन है कि y1 क्या है, y1 का डेरिवेटिव क्या है at x is equals to 0. So Wronskian at x is equals to 0 is y1 0, that is 0. y1 का डेरिवेटिव at 0 is again 1. y2 का 0 that would be 1 and y2 dash का 0 दैट इज़ 1. तो इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, दैट वुड बी -1 नॉट इक्वल्स टू 0. नाउ हमें एट x इज इक्वल्स टू 1 निकालना है. यहाँ पर Wronskian एट x इज इक्वल्स टू 0 आ गया है हमारे पास, बट हमें चाहिए Wronskian एट x इज इक्वल्स टू 1. सो व्हाट वी डू नाउ, दिस इज़ द वर्क फॉर Abel's formula. नाउ
What is now Abel's formula? We have put it. रॉन्स्कियन निकालने का एक बेस्ट तरीका होता है एबल्स फार्मूला. अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि रॉन्स्कियन अगर हमने 0 के लिए निकाल लिया है, 1 के लिए आप कैसे करें, तो वी जस्ट हैव टू पुट द एबल्स फार्मूला. नाउ a इंटू ई टू द पावर ऑफ a1x डिवाइडेड बाय a2x. नाउ व्हाट इज़ आर a1? यहाँ पे आई हैव जस्ट टोल्ड यू a1 इज़ -2. So -2 of x divided by 1 into dx. Sorry, I've missed just one point. इधर -2 नहीं आएगा, इधर -2 of x आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम कोफिशिएंट्स देख रहे हैं. कोफिशिएंट यहाँ पर लाइक y डबल डैश -2x y डैश प्लस साइन e टू द पावर x स्क्वायर y इक्वल्स टू 0. सो यहाँ का कोफिशिएंट 1 होगा और y डैश का कोफिशिएंट क्या होगा? -2x. तो this whole -2x gonna become our a1 and 1 will become a0. Sorry for that, I've just missed one point. Now -2 of x divided by 1 into dx, क्योंकि ये हमारा हो गया a1, ये हो गया हमारा a0. I hope you got it. एंड दिस आंसर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ माइनस का साइन आएगा तो माइनस माइनस प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा लाइक दिस. ए ई टू द पावर 2x स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस इज लाइक दिस. सो ये मैच हो गया. एंड देन वी हैव फाइंड रॉन्स्कियन एट x इज इक्वल्स टू 0, that is -1. we have put Wronskian इधर -1. हमने ये चीज़ हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट कर दी. Wronskian of 0 would be -1 a e to the power 0. x को हमने 0 ले लिया at x is equals to 0. तो सारी चीज़ें हमने पुट कर दी. हमारी कांस्टेंट की वैल्यू आ गई -1 एंड देन Wronskian would be, हमने इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में दिस वन स्टैंडर्ड इक्वेशन में हमने अपना a पुट कर दिया. दैट वुड बी माइनस ऑफ e टू द पावर एक्स स्क्वायर. नाउ हम इजीली एट x इज इक्वल्स टू 1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. दैट वुड बी माइनस ऑफ e. सो दिस वुड बी योर b ऑप्शन विच इज करेक्ट. आई होप यू गॉट इट. थैंक यू. So in next lecture we're gonna discuss about what is orthogonal trajectory and their equation. In first lecture we're gonna discuss about Cartesian orthogonal trajectory in Cartesian form, and then in the another lecture we're going to discuss about orthogonal trajectory in polar form. I hope you like it. Please like, share and subscribe. Thank you.